Good morning students. I hope you all are well. So student, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, using list and images over to the web page. Now the question is what is the need of this topic, that is list. Actually students, sometimes we need to show the content of the web page is in the form of list, and if we want to just get the items or the elements in the form of list, then we need to prepare we need to use some list tags. Okay, so let's see how we need to just use them. I'm just giving you two examples of the list. Like you would like to show your values or that data is in the form of bulleted list, or can say that in ordered list. So there are two kind of list available in HTML. First is bulleted list. It is also known as unordered list because the values are not having a specific order. But if I am talking about this, then this is called ordered list, because have you seen that here the number of elements having a specific order, like 1 2 3 4, it is a numeric order. It may be A B C D alphabetical order, or maybe in Roman numbers. Okay, actually HTML list allow us to just create a group of values within that, showing it within the list. Okay, तो अगर आपको लिस्ट में डेटा को डिस्प्ले करना होता है तो वी आर यूजिंग अ लिस्ट. ओके, तो फर्स्ट वी सी दैट हाउ वी नीड टू क्रिएट अ लिस्ट. सो फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम. लेट्स सी. In body tag I am just showing a list of students. So for that I am showing the list of student title for my list. Now I am here using a unordered list. So for that unordered list you have UL tag. UL stands for unordered list. Now I would like to show their items. So for that I am using li. Li is the tag which is used to give the items for the unordered list. Like let the number of students are 5, so I need to make their list of names of the students. So for that I am using li tag to give all 5 students name. ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एल आई टैग को क्लोज करना आपके लिए कंपलसरी है. लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो जैसे ही आपको मैंने बता रखा है कि आप एक एल आई टैग को ओपन करके जैसे ही दूसरे एल आई टैग ओपन करते हैं और दूसरे उसी को क्लोज नहीं करते, और नेक्स्ट जो एल आई है अगर आप उसे ओपन कर देते हैं तो उस एल आई के इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो गौर से देखिए, मैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के नाम डाल रहा हूँ. ये देखिए बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट एक प्रिपेयर करी है थ्रू द यूएल टैग. यूएल टैग के अंदर जितने भी मेरे एलिमेंट्स थे मैंने उनको डाल दिया है. चूँकि मेरे सारे एलिमेंट्स डल चुके हैं तो आई एम जस्ट क्लोजिंग यूएल टैग. ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ. ओके, नाउ आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम, आई एम रनिंग इट टू द ब्राउज़र. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. दिस इज these are the bullets which are presenting here by default. This is disk type of bullet. आप चाहें तो इस बुलेट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं बच्चों. कैसे? आप UL के अंदर एक एट्रीब्यूट सेट कर दीजिए, दैट इज टाइप एट्रीब्यूट. आप टाइप एट्रीब्यूट के अंदर सपोज करो आपने डाला स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक आपके जो बुलेट स्टाइल है वो क्या हो जाएगी? स्क्वायर. लेट्स सी, ये देखिएगा आपके सारे बुलेट स्क्वायर हो गए. आप चाहो तो यहाँ पे सर्कल भी डाल सकते हो. आपके सारे के सारे बुलेट्स सर्कल शेप में आ जाएंगे. ये देखिए बच्चों. ओके, आपने देखा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो मेरी टाइटल ऑफ लिस्ट था वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ रहा है, और जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो प्रॉपरली इंडेंट होके बिल्कुल एक स्पेसिफिक बुलेट स्टाइल के अंदर शो हो रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ आइटम लाइक दिस, देन यू शुड यूज यूएल टैग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट. एज यू नो दैट बच्चों, ऑर्डर्ड लिस्ट इज having a specific order of item. So for that we are using OL. OL stands for ordered list. ठीक है, OL stands for ordered list. Ordered list open, ordered list close. बाकी कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल वही सेम है. To create a ordered list we use OL tag, and after inserting all the element in the order tag OL, you must close it as closing of OL tag, and all the elements of ordered list will be coming like this in the li tag. Okay, so I am saving it and
ये देखिए बच्चों, ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 एक पर्टिकुलर ऑर्डर आ गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर्ड ऑर्डर आता है। आप चाहो तो ऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हो बच्चों। सपोज करो आपको करना है अल्फ़ाबेटिकल, सो आप डाल दीजिए टाइप इक्वल्स टू ए। तो जैसे ही आप ऑर्डर लिस्ट को टाइप इक्वल्स टू ए करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल आ जाएगी बच्चों। आप चाहें तो अल्फ़ाबेटिक में भी स्मॉल लेटर्स में ला सकते हैं, उसके लिए इस OL टाइप इक्वल टू स्मॉल ए कर दीजिए। जैसे ही आप इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, आपका ये स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल आ जाएगा, ओके। आप रोमन नंबर में चाहते हैं तो उसके लिए कैपिटल आई, ओके। कैपिटल आई को सेव करके आप रन करेंगे तो ये देखिए बच्चों, सारे के सारे अल्फ़ा दैट रोमन नंबर में आपकी ऑर्डरिंग हो गई। आप चाहें तो इसको भी स्मॉल लेटर में ला सकते हैं, फॉर दैट स्मॉल आई, ये देखिए, ओके बच्चों। बट समटाइम्स वी नीड टू जस्ट अरेंज आवर लिस्ट इनटू द डिफरेंट ऑर्डर। लाइक आई वुड लाइक टू जस्ट स्टार्ट माय दैट ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम आइटम नंबर 4। जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डर जो लिस्ट है हमारी, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक सेकेंड, F5, ये देखो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो रही है। सपोज़ करो मुझे पहले आइटम को 3 नंबर पे लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, OL टाइप इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, 3, सॉरी टाइप इक्वल्स टू तो आपका 1 है ही है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टार्ट इक्वल टू 3, ओके। ये देखिए बच्चों, आपका जो लिस्ट है वो 3 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सभी एलिमेंट 3 नंबर से ऑर्डर्ड हो गए, अंडरस्टैंड। आप अगर यही अल्फ़ाबेट में चाहते हैं, जैसे सपोज़ करो आपने OL ले रखी है टाइप इक्वल्स टू कैपिटल A, बट यू वांट टू स्टार्ट विद C, तो डू रिमेंबर बच्चों, यू विल नॉट राइट हियर स्टार्ट इक्वल टू कैपिटल C। आपको जो हमारा कैरेक्टर है C, वो अल्फ़ाबेट में किस ऑर्डर में आता है, आपको उस पर्टिकुलर ऑर्डर को लिखना होगा, ओके बच्चों। तो जैसे C आता है हमारा थर्ड पोजीशन पे, ABC, C इज़ ऑन थर्ड पोजीशन, तो आप स्टार्ट इक्वल टू कितना डाल देंगे यहाँ पे, 3। जैसे ही आप इसको कंट्रोल S करके रन करेंगे, ये C से आपका ऑर्डर्ड हो जाएगा, ओके बच्चों। सो ये थी हमारी ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, जो कि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।